हेलो गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स, इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, or it is the process of dividing the area into small areas to get the whole, means to get the complete area. But that we will discuss in definite integral. So as I said, integration is just the reverse process of differentiation. Like if we differentiate x squared, we get 2x. If we integrate 2x, we get x square. So this is the differentiation here. This is integration. This is derivative. This is antiderivative here. Integration is also known as antiderivative. Next, if we see d by dx of x square, that is 2x d by dx of x square plus 1, that is again 2x d by dx of x square minus 3 by 4, that is also 2x. Now if we see the integration of 2x with respect to x, that is what, तो इनमें से क्या होना चाहिए, x square plus 1, x square minus 3 by 4 or something else. It should be x square plus c, where c is constant, arbitrary constant, इसका कोई वैल्यू हो सकता है. So you can see from here this c belongs to real number. Now next, a small observation from here. If you cross multiply dx, you get d of x square, that is 2x dx. Now integrating both sides, derivative and integration neutralize each other, so we get integration of 2x with respect to x, that is x square, with arbitrary constant. This constant c is also known as constant of integration. Now whenever we integrate a function, we get family of curves. Here we get family of parabolas, like this. So if c is 0, then we get this y equal to x square. If we have c is 1, then we get this one, y equal to x square plus 1. If we have c equal to minus 1, then we have this particular curve, y equal to x square minus 1. So आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम जो है वो डिफरेंट है, बट शक्ल सबकी एक जैसी है. दैट्स व्हाई वी कॉल family of curves here, family of parabolas. Next, if we have d by dx of x, then this is 1. Integration of 1, that is x plus constant of integration. Here the family of curves is family of lines, so we are getting family of lines like this. So again we can see this is y equal to x if c is 0. If c is 1, then this one, y equal to x plus 1. If c is minus 1, y equal to x minus 1. So next we have standard formula, that is integration of x raised to power n with respect to x, that is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus constant of integration
and this n should not be equal to -1. अगर n -1 हुआ तो something upon 0 undefined, तो एक n -1 नहीं होना चाहिए. Then we have integration x raised to power n will be equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. Next, if we have example x raised to power, suppose 2 by 3 with respect to x. This will be what? X raised to power 2 by 3 plus 1 divided by 2 by 3 plus 1 plus constant of integration, right? Then we have x raised to power 5 by 3 from here upon 5 by 3 means what? 3 by 5 plus constant of integration. Next, we have integration related to trigonometric functions. Integration of sine x with respect to x, that is minus cos x. We have integration of cos x, that is sine x. Then we have integration of secant square x, that is tangent x. Then we have integration of cosecant square x, that is minus cot x. We have integration of secant x tan x, that is secant x. We have integration of cosecant x cot x. Sorry, this is minus cosecant x, right? ऐसा क्यों? Derivative of sin x is cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin, डेरिवेटिव cos का माइनस sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, टेंजेंट का डेरिवेटिव secant square, secant का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन tangent, and similarly we have further. Next, we have integration related to logarithmic and exponential functions. So first, exponential function e raised to power x. Integration of e raised to power x is e raised to power x plus c. Integration of a raised to power x, that is a raised to power x upon log a plus c. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव a raised to power x है, तो e raised to power x का इंटीग्रेशन a raised to power x upon log a. Next, we have integration of 1 by x, that is log mod x, right? ऐसा क्यों? क्योंकि log takes only positive values. Log mod x का डेरिवेटिव 1 by x, then 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x. Let's see its derivative. We have d by dx of log mod x question mark. When x is greater than 0, then d by dx of log x mod x is x, and derivative is 1 by x. When x is less than 0, d by dx of log of minus x log u, the mod x जो है वो minus x हो जाएगा when x negative. Now log u, derivative is 1 upon u and du by dx. This is 1 by x. So you can see log mod x का derivative 1 by x, तो 1 by x का integration log mod x. तो जी next जो है हमारे पास है integration related to inverse trigonometric functions. We have integration of 1 upon square root 1 minus x square. इसका इंटीग्रेशन है sin inverse x plus constant of integration. Next we have integration of 1 upon 1 plus x square, that is tangent inverse x. Then we have integration of 1 upon mod x, that is into root x square minus 1 with respect to x, that is secant inverse x plus c.
Further, integration of 1 upon root 1 minus x square, that is also minus cos inverse x, from here that is minus cot inverse x, from here that is minus cosecant inverse x. But that there is no need, इतना ही सफिशिएंट है, याद रखना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स मेंशन करते भी हो तो भी अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं वही है. लेट अस सी कैसे. आपको पता है कि ITF का जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2. तो कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे रख दो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो c माइनस पाई बाय 2 नया नाम c1 एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स वही बन जाता है. सो देयर इज नो नीड, एज आई सेड, इतना ही सफिशिएंट है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इतना याद रखना. नेक्स्ट वी हैव बेसिक रूल्स, बट बिफोर दैट यहाँ पे ये मोड का बड़ा कंफ्यूजन रहता है. सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू, एज वी नो, dy dx of secant inverse x, that is 1 upon mod x root x square minus 1. जब फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करते हैं we get this 1 upon x root x square minus 1, right? When x is greater than 1, this is minus 1 upon x root x square minus 1 when x is less than minus 1. So you can see this is slope dy by dx. So slope of tangent at any point to the curve, from here you can see positive and x is greater than 1, and x is less than minus 1, that is also positive, you can see. ठीक है ना, x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो ओवरऑल क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है. सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट हियर मोड, बिकॉज स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए जो है वो x के ऊपर मोड डाला हमने. ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी. ठीक है, it is very easy to see from the graph. This is 0, this is pi, this is pi by 2. तो पहले कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसकी हेल्प से सेकंड इनवर्स एक्स का, बड़ा इजी. तो जी ये तो है अपने पास कोस इनवर्स एक्स, दिस इज 1, दिस इज -1. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेकंड इनवर्स एक्स का. ठीक है, देन फ्रॉम हियर we have like this, right? तो जी ये तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, ये है y इक्वल टू सेकंड इनवर्स एक्स का. ठीक है, दिस एंड दिस पार्ट. You can see slope of tangent, that is positive, because this tangent line is making an angle of making an acute angle with the positive direction of x-axis, right? So tan theta is always positive, dy by dx is always positive. Also from here you can see dy by dx or tan theta or tangent line making an acute angle with the positive direction of x-axis, right? So tan theta is positive and dy by dx is positive. So that's why we have to take positive value. This x अगर नेगेटिव है उस केस में ये पॉजिटिव ही रहने वाला है. ठीक है ना, अगर हम मोड रखते हैं तो मोड रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव बेसिक रूल्स. बेसिक रूल में अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट एंड एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन. ठीक है,
तो जी एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमारे पास है 2 sin x, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा विच इज व्हाट, माइनस कॉस, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर लिया, साइन का इंटीग्रेशन कर देना बस। इसको आगे लिखना चाहो तो -2 cos x प्लस c। नेक्स्ट बेसिक रूल जो है अपने पास है fx प्लस माइनस gx। तो जी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फंक्शन है अपने पास अगर, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, fx का इंटीग्रेशन अलग करना है, ठीक है, जो भी साइन होगा बीच में वो आ जाएगा प्लस या माइनस, gx का इंटीग्रेशन अलग हो जाना है, ठीक है, ऐसे। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास है कॉस एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर का अलग करना है, ठीक है, और कॉस एक्स का अलग, राइट। तो जी अपने पास जो है बनता है ये एक्स क्यूब बाई 3 कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अलग अलग कांस्टेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1 लिखा, फिर इसका साइन एक्स प्लस c2 लिखा, फिर c1 c प्लस c2 को नया नाम दिया c। तो वैसा नहीं करना है, जस्ट एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन करना है, क्योंकि अलग अलग मेंशन करते हैं उस केस में कहीं ना कहीं वो एक ही बन जाना है कांस्टेंट, ठीक है। तो जी नेक्स्ट अपने पास है इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, सपोज अपने पास है कैपिटल एफ एक्स, राइट, कहता है देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, that is equal to with respect to x, that is equal to f of ax plus minus b upon coefficient of x। इसी के लिए ये सब किया है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वाला है कैपिटल एफ एक्स, तो ऐसे ही टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, अपॉन में आएगा हमेशा x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे a है, तो लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर के इसमें ही देखना है हमें, अदरवाइज तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ता है जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूशन से हम कर सकते हैं, ठीक है, बट वो चीज़ आगे की है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक करना है हमें, एक ऑब्जर्वेशन कि एक्स का कोएफिशिएंट वी हैव टू मेंशन इन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, तो सपोज ई रेज टू पावर 2 माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ, ई रेज टू पावर 2 माइनस 3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, ई रेज टू पावर 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन एज इट इज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जी नेक्स्ट वी हैव बेसिक क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर x e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जी यू नो इनको क्लब कर लेंगे, दोनों ही कांस्टेंट है 2 और e, ठीक है। तो जी 2e रेज टू पावर x with respect to x, this is what a raised to power x, तो a raised to power x का इंटीग्रेशन a raised to power x and upon log a, तो 2e raised to power x upon log 2e plus constant of integration। Let's see next question. Second we have suppose x cube minus x square plus 1 divided by x square with respect to x। सभी टर्म्स के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इजीली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से x, इधर से 1, इधर से एज इट इज, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x, ठीक है, और देन वी हैव x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड अपॉन माइनस 2, x रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, then we have x square by 2,
minus x minus 1 by x plus constant of integration. Let's see the next question. Suppose we have cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha with respect to x. cos 2x के 3 फॉर्मूले अपने पास जो कि लगभग एक ही है कहीं ना कहीं. cos square x minus sin square x 1 minus 2 sin square x, then we have 2 cos square x minus 1. तो 2 cos square x minus 1 लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर अपने पास ऊपर बन जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा. Let's see that this is 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha. 1 gets cancel. एक तो कैंसिल हुआ यहाँ से, तो जी 2 बाहर आ जाएगा और cos square x माइनस cos square alpha अपॉन cos x माइनस cos alpha. इसको ब्रेक कर सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. तो जी cos x माइनस अल्फा एंड cos x प्लस अल्फा. cos x माइनस अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा and we are left with then cos x plus alpha. So 2 we have integration cos x plus cos alpha, right? Next cos x का integration sin cos alpha का, cos alpha the constant as it is यानी बाहर लेके और 1 बचा उसका इंटीग्रेशन x इस टाइप से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, right? Next, if we take question integration 1 upon root x plus 1 minus root x plus 2. तो जी इसको कर दो रैशनलाइज ऐसे क्वेश्चन में. तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी से डिवाइड करोगे, तो जी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस इधर a plus b and a minus b, that is a square minus b square. So I can write x plus 1 minus x plus 2, x gets cancelled और with respect to x, ठीक है. तो जी यहाँ से 1 minus 2 minus 1 और ये एज इट इज है, इनको इंटीग्रेट करना है बस, प्लस रूट एक्स प्लस 2, राइट. तो जी कर दो माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 वही नीचे आएगा जो कि यहाँ पे लिखा जा सकता है ऐसे यहाँ पे एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 2/3 plus constant of integration. Let's see next question. We have 3x square plus 4 upon 1 plus x square. तो जी इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? preparation of denominator in numerator. तो 1 plus x square जो है ऊपर क्रिएट करेंगे, उससे पहले 3 बाहर लेंगे. दिस इज x square plus 4/3 and this is 1 plus x square or x square plus 1. Next plus 1 minus 1 then collection इस टाइप से 3 as it is बाहर x square plus 1 4/3 minus 1 and x square plus 1, ठीक है. नेक्स्ट जो है सेपरेट कर देंगे इनको और इंटीग्रेट कर देंगे. 3 यहाँ से 1 यहाँ से प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू
3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 का x 1/3 कांस्टेंट एज इट इज, देन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, दैट इज tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x माइनस 1। एक तो इसे लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं +1 -1 करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि उससे फैक्टर बन जाएंगे। x रेज़ टू पावर 4 -1 +1 किया और x -1 है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1 डिवाइड बाई x माइनस, फिर वही स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ से इसको ब्रेक भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, x स्क्वायर +1 डिवाइड बाई x -1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1। राइट, इसमें फिर से लगा दो a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अपने पास। तो जी x -1 तो कैंसिल हो जाएगा, x +1 रह जाएगा और साथ में ये x +1 x स्क्वायर +1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस log mod x -1, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, देन वी हैव, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना, बस और कुछ नहीं है अभी। दिस इज व्हाट x क्यूब प्लस x स्क्वायर +1 with respect to x, right, and this one is as it is। इसको इंटीग्रेट कर दो, x रेज़ टू पावर 4/4 x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस log mod x -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वी हैव 7th question। Suppose we have 1 upon square root of 1 minus 4x plus 5 is its whole square। So इसको इंटीग्रेट करना है, आपको पता है ये तो फॉर्मूला ही है, 1 upon √1 minus x square that is sin इनवर्स x, x इसको बोला पूरे को, तो ये बना sin इनवर्स 4x plus 5 and don't forget to write the coefficient of x in denominator। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा आएगा अगर लीनियर फैक्टर है। ठीक है ना, तो जी x का कोफिशिएंट आएगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x। अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है तो क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला बन रहा है तो 2 cos a cos b, तो क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, तो जी 1/2 तो बाहर, 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b विच इज -x, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा आ जाएगा। फिर से 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b यानी x प्लस 2x दैट इज 3x, देन प्लस cos ऑफ a माइनस b यानी x माइनस 2x माइनस x आएगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो जी cos x आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेट करना है cos 3x का sin 3x डिवाइड बाई 3 अपॉन में प्लस में sin x, राइट, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। See next we have 1 upon 1 plus sin x sorry,
तो जी 1/1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अपने पास दो मेथड है, एक तो साइन को कोस में बदल सकते हैं, दूसरा रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जी मेथड 1 साइन को कॉस में बदलते हैं, ठीक है। तो जी 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, दोनों मेथड से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होता है। तो जी 1/1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, राइट। 1/2 बाहर, 1 कॉस स्क्वायर secant square pi by 4 minus x by 2 with respect to x। तो जी 1/2 secant square थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा pi by 4 minus x by 2। Don't forget to write the coefficient of x in denominator। x का कोफिशिएंट आएगा -12 डिनोमिनेटर में, प्लस सी हाफ कैंसिल हुआ, माइनस एंड देन टेंजेंट pi by 4 minus x by 2, right, and प्लस से कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है अपने पास है मेथड 2, ठीक है, कोई सा मेथड कर सकते हो एग्जाम में किसी मेथड से। तो जी दोनों में से रैशनलाइज करके 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। फिर स्प्लिटिंग किया, सेपरेट कर दो, 1/cos स्क्वायर एक्स secant square x, right, sin upon cos 1/cos secant tangent, ठीक है, we have and dx। तो जी secant square tangent x secant x tan x secant x, right। अब कहोगे जी इन दोनों के तो आंसर अलग है, पर दोनों सही है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी मेथड से कर सकते हो आप, पर ये दोनों आंसर जगह कहीं ना कहीं एक ही है, उसको अब शो करते हैं, लेट अस सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम वगैरह एग्जाम में तो करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के वहाँ पहुँच सकते हैं, या यहाँ से इधर पहुँच सकते हैं। तो जीसी को कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1/cos एक्स, ठीक है, प्लस सी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अपने पास है cos x, देन वी हैव sin x -1, ठीक है, नेगेटिव ऐसे भी यहाँ पे बाहर है तो ले लो कॉमन, -1 माइनस sin x एंड cos x। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 cos x, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो जी बना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से, तो जी नेगेटिव वी हैव cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा अपने पास, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 विच इज 1 माइनस sin x। इसको भी इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, राइट। यहाँ पे फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इस ए माइनस बी से दो है अपने पास, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, नेगेटिव cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इस ए माइनस बी से कैंसिल हुआ, एक से एक बचा, ए प्लस बी और साथ में टेंजेंट में चाहिए
तो कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, टेंजेंट बन जाएगा -1 माइनस टेंजेंट x/2 1 प्लस टेंजेंट x/2 tan a माइनस b बन जाता है ये, टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट x/2 1 प्लस 1 है यहाँ पे 1 ले लो, टेंजेंट π/4 टेंजेंट x/2, ठीक है। तो जी टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b विच इज टेंजेंट a माइनस b, नेगेटिव टेंजेंट π/4 माइनस x/2, ओपन करते हैं, यही आता है अपने पास, टेंजेंट π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x/2, राइट। तो जी देख सकते हैं वही आ रहा है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपके लिए दिखाया है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप करोगे एग्जाम के अंदर अगर आता है तो, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कहीं ना कहीं इसका यूज होता ही रहता है, ठीक है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और कैलकुलस में तो होता ही है। तो जी नेक्स्ट वी हैव सम इंटरेस्टिंग फंक्शंस which are non-integrable but at the same time integrable। तो जी देखते हैं वो क्या कौन से फंक्शंस हैं, किस टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। वी हैव फंक्शंस लाइक x by sin x, sin x by x, we have e raised to power x square, e raised to power x, we have function like 1 upon ln x, then we have x cube upon 1 plus x raised to power 5, right। तो जी next we have square root of 1 minus k square sin square x, we have root sin x, we have sin x square cos x square, right, etc। तो इस टाइप के जो फंक्शंस है अपने पास वो इंटीग्रेट यहाँ पे तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे, हायर क्लासेस में, ठीक है। तो जो भी टेक्निक्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं उससे ये इंटीग्रेट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं वो इंटीग्रेट होंगे अपने एडवांस टेक्निक से with special functions we will be able to integrate such type of functions। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन आपके सामने नहीं आने वाले हैं, और जो टेक्निक्स हम इंटीग्रेशन में सीखने वाले हैं उनसे ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेट करना। तो ये इंटीग्रेबल है स्पेशल फंक्शंस से की हेल्प से, ठीक है, एडवांस टेक्निक से। लाइक अगर आप इसकी बात करो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की, ये तो कहीं ना कहीं e रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाओगे तो सही हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, एक्स की जगह रिप्लेस कर दोगे एक्स, ये भी कहीं ना कहीं टेलर सीरीज से हो जाता है एक्सपेंशन से। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्स से डिवाइड किया और इंटीग्रेट टर्म बाई टर्म किया, but other functions not possible। Next I'll let you know thought process। First is preparation of denominator in numerator। एग्जाम्पल हमने किया है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो वाइल इंटीग्रेटिंग इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वी हैव सेपरेशन, ये भी हमने किया है, ठीक है, बहुत बार होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, या 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, उससे भी उसमें वही करना है। ठीक है, तो ये कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बनता है जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स है, ये कॉस अपॉन साइन कॉट और 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट, कॉसिकेंट कॉट जिसका इंटीग्रेशन माइनस cosecant x. Next we have simplification of the function. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे गुजारा नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 अपॉन 1 प्लस x, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन इज मस्ट, बहुत जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, क्या किया, साइन को कोस में बदला या फिर रैशनलाइज किया और फिर आगे सॉल्व किया। ये भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन ही है, आप सेपरेट कर रहे हो, ये भी प्रेपरेशन कर रहे हो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, बट कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को मैंने सेपरेट कहीं ना कहीं दिखाया है ताकि जो रूल्स आप आगे सीखो तो लगाने ही है, बट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ये 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क, a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x अपॉन इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका आंसर यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next lecture, we will discuss exercise 10.1 NCERT. Till then, stay tuned, stay wild. Bye bye.